Hello students, this is Komal Srivastav from Learn English to Komal. I think you are doing well. So this is our first chapter. The name of the chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet. So let's start the explanation of this chapter. So first of all, we will talk about the author Alphonse Daudet, who was born on 13th of May 1840 in France and died on December 16, 1897 in Paris. So he was a short story writer and also a novelist, and he is remembered chiefly for his sentimental tales based on provincial life and of the life of south of France. So firstly we will discuss the introduction of the story. So the last lesson by Alphonse Daudet is a short war fiction story in 1870-71. France and Prussia were at war. That time Prussia was consisting of three nations in one, Germany, Poland and Austria. So लास्ट लेसन जो है अल्फोंस डॉलर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें फ्रैंको प्रशियन वॉर की स्थिति को दिखाया गया है। अब रशिया में तीन स्टेट जुड़े हुए थे, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. दिस पर्टिकुलर स्टोरी टेक प्लेस इन अ विलेज सिचुएटेड इन द टाउन एल्सैस. ये जो कहानी है वो एल्सैस में स्थित है, विच इज़ बॉर्डरिंग जर्मनी, जो जर्मनी के बॉर्डर पर है. बिस्मार्क्स प्रशियन आर्मी सीज्ड फ्रांस. Prussia rule extended to Lorraine and Alsace. The French language was no longer taught in these two provinces. तो जर्मनी के बिस्मार्क की आर्मी ने फ्रांस पे कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ के दो ज़िले जो अल्सैस और लॉरेन हैं वहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. So the French language was no longer taught in these two provinces. As a result, M. Hamel, a school teacher of French language, was dismissed from his duty. तो इसकी वजह से एम हैमल जो कि वहाँ के फ्रेंच के टीचर थे, अब उनकी जॉब खतरे में आ गई, उन्हें उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है. डिस्पाइट दिस हिज लास्ट लेसन वॉज फिल्ड विद कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी. और इसके बावजूद उनका जो लास्ट लेसन था वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ उन्होंने पढ़ाया. Little Franz, a student, was terrified to learn that this was his last ever French lesson. तो उन्हीं का एक स्टूडेंट है लिटिल फ्रांस. तो उसको जान करके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, जबकि उसको फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं, क्योंकि उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी. So the situation of war, patriotism is the main theme of this lesson. तो ये कहानी हमें युद्ध की स्थिति को दिखाती है और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद को भी दिखाती है. देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. तो यहाँ पे कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, द स्कूल बॉय फ्रांस, स्कूल का जो बच्चा है फ्रांस, एंड द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज मिस्टर एम हैमल, और फ्रांस के टीचर मिस्टर एम हैमल. सो यू ऑल नो why the chapter is named The Last Lesson, because it was the last chapter of Little France, and it was also the last chapter of Mr. M. Hamel, who was a French teacher. So the chapter is named The Last Lesson. So what is the theme of the story? The theme of the story is pain experienced by the people where they are deprived of the freedom to study or speak their own language. तो इस कहानी की थीम ये है कि लोग अपनी खुद की लैंग्वेज से और उसको बोलने और उसको पढ़ने से वंचित किए जाते हैं. It also tells about the attitude of student teachers toward learning and teaching respectively. और ये स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में पढ़ने और पढ़ाने की जो एटीट्यूड है उसको भी दिखाता है. The story describes the human tendency to not realize the value of something until it's gone. और ये भी दिखाता है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो तब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं जब तक वो चीज़ें उनकी पहुँच से दूर नहीं हो जाती. The people of Alsace failed to realize the importance of learning their own language French until the last lesson arrived. So Alsace के लोगों को उनकी खुद की मातृभाषा की इम्पोर्टेंस नहीं थी जब तक कि उनका लास्ट लेसन नहीं आ गया. So let's start the chapter explanation. So 1 second, I'm hiding my face.
So I started school very late morning and was in great dread of scolding. Dread means very extremely worried or frightened. So उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था. स्कॉल्डिंग मीन्स डांट पड़ना. स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे कि वो हमसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, मतलब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. एक क्षण के लिए मैंने घर से भाग जाने और घर के बाहर ही दिन बिताने को सोचा. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. वो बहुत ही चमकीला दिन था, बहुत गर्म. द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. पक्षी जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे. ट्रिपिंग मीन्स चहचहाना, बर्ड्स वॉइस. एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन आर्मी सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और पीछे की ओर खुले मैदान में, सॉमिल मीन्स लकड़ी काटने का कारखाना, जिसको हम लोग कहते हैं आरा मशीन. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सॉमिल. सो फैक्ट्री फॉर कटिंग वर्ड्स. और पीछे की ओर क्या हो रहा था, वहाँ पे आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में सैनिक अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. ये सारी चीज़ें मुझे पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मनमोहक लग रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मुझ में इन सब का विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ भागा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. So what is bulletin board? Bulletin board basically एक न्यूज़ बोर्ड हुआ करता था और टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग हुआ करती थी. So when I passed the town hall, there was a great crowd in front of bulletin board. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर सूचना पट, जिसमें मतलब न्यूज़ बोर्ड, उसके सामने भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरे समाचार वहीं से आए थे. द लॉस्ट बैटल, युद्ध के समाचार, युद्ध हारने के समाचार. द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती. द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कानूनी आदेश से संबंधित समाचार. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. और मैं अपने आप को बिना रोके हुए मैंने मन में ही सोचा, अब क्या बात हो गई. एज आई हरीड बाय फास्ट एज आई कुड गो. मैं जितनी तेज़ी से जा सकता था मैं चला. द ब्लैक स्मिथ वॉचर, लोहार जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी. तो जो कि अपने ट्रेनी के साथ खड़ा था. ट्रेनी मतलब उसके साथ जो काम करता था लड़का, तो वो अपने प्रशिक्षु के साथ था. तो वो अपने ट्रेनी के साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे, उस न्यूज़ को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. इतनी तेज़ी से मत जाओ लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मैंने सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हैमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और मैं हाफता हुआ एम हैमेल के छोटे बगीचे में पहुंच गया. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle. What is bustle?
Bustle is a lot of noise created by many people. जब बहुत सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो उसको हम bustle बोलते हैं. Usually when school began there was a great bustle. वैसे जब स्कूल खुलता था, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली से ही सुना जा सकता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स डिपेटेड इन यूनिसन. सो यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम. एक साथ जब कोई कोई काम करता है तो उसे यूनिसन बोलते हैं. सो ये जो शोरगुल है उसे गली से सुना जा सकता था. कौन सा शोरगुल? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों को खोलने और बंद करने की आवाज़ और पाठों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, विच आर हैंड ओवर आर आइज टू अंडरस्टैंड बेटर. इतनी तेज़ी से और वह लोग अपने हाथों को अपने कानों पे लगा देते थे ताकि बहुत अच्छे से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल. रैपिंग मीन्स हिट करना, स्ट्राइक करना. और टीचर के अपने डंडे को टेबल पर पीटने की आवाज़. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन अब वो सारी चीज़ें शांत थीं. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. तो मुझे क्या करना था? मुझे सो कमोशन मीन्स नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन. तो वो कहता है कि मुझे भरोसा था कि मैं इस शोरगुल के बीच में अपने डेस्क पर बिना दिखे पहुंच जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन सचमुच रविवार की सुबह जितना शांति थी. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. मैंने खिड़की के सहारे अपने सहपाठियों को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थान पर थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और मिस्टर एम हैमल अपने उस भयानक डंडे के साथ अपने बाहों में उसे दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे. एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और मुझे अंदर जाना था और दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा, मतलब कितना लाल पीला होऊंगा एंड कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ होऊंगा. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. अपने स्थान पर जाओ जल्दी से लिटिल फ्रांस. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैं तेज़ी से कूदा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया. नॉट टिल देन when I had go to little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और तब मैंने ये नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने एक सुंदर कोट पहन रखा है. जब तक कि मैं डर में था मैंने ये चीज़ देखी ही नहीं कि मेरे अध्यापक ने आज एक सुंदर हरा रंग का कोट पहन रखा है. हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. उनकी झालरदार शर्ट और उनकी काली रेशम की टोपी, वो सारे में कढ़ाइयाँ हुई थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण. एंड प्राइज डे, और पुरस्कार वितरण. तो ये कह रहे हैं कि ये कभी से नहीं पहनते थे सिवाय निरीक्षण या तो पुरस्कार वितरण के दिन. Beside the whole school seemed so strange and solemn. और इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा ही विचित्र और गंभीर दिख रहा था. Solemn means serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty
लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे आश्चर्य किया वो ये थी कि जो पिछली सीटें जो हमेशा खाली होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पे गांव के लोग बड़ी शांति से हमारी तरह बैठे थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्न हैट, ओल्ड हाउसर वो अपनी तिकोनी टोपी के साथ बैठा था। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, पुराना मेयर और पुराना पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग पीछे थे। एवरीबडी लुक सैड, सभी लोग बड़े दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स बेसिक बुक ऑफ लैंग्वेज। सो ओल्ड हाउसर के पास उसके बेसिक बुक ऑफ लैंग्वेज थी, मतलब प्रारंभिक व्याकरण की किताब थी। Thumbed at the edge and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages. Thumbed का मतलब वो जो पेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। सो उनके जो पेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, पुराने हो चुके थे। तो वो उनके कोने को पकड़ता है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने घुटनों पर किताब को खुले हुए रखा हुआ है और उसके बड़े चश्मे उस पेजेस को देख रहे हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स सीरियस, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था। सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब ये मेरा अंतिम चैप्टर है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only Germans in the school of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आया है कि अब एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, आपके नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यान दें। What a thunderclap these words to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह थे। Thunderclap means बिजली, unexpected. So ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह थे। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. Wretches means refer to an unfortunate, बहुत अभागा। सो कह रहा है, अरे अरे अभागे लोग, तो सभागार पे ये चीज़ लगाई हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। ओह सॉरी, आई मस्ट स्टॉप देन, सॉरी, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब कभी नहीं लिखना जान पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देन, और मैं यहीं रुक जाऊँगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मैं अपने पाठ याद न करके और पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने में कितना व्यस्त था, मुझे कितना दुख हो रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नोसेंस, नोसेंस मीन्स समस्या। सो मेरी जो किताबें हैं कुछ समय पहले मुझे बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और इन्हें ढूंढना बोझ जैसा लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स,
मेरे व्याकरण की किताबें और संतों के इतिहास की किताबें वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी पुरानी मित्र हो गई। दैट आई कुड नॉट गिव अप, कि मैं अब उन्हें त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी इस विचार को नहीं त्याग सकते थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उससे भी ज़्यादा ये विचार कि अब मैं फिर कभी एम हैमल से नहीं मिल सकूँगा, उन्हें नहीं देख सकूँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और इस विचार ने मुझे उनके डंडे के बारे में और वो कितने बदतमीज़ थे और कितने वो चिड़चिड़े थे, ये सारी चीज़ें भुला दी। पुअर मैन, बेचारा ये आदमी। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothing. तो ये उनके अंतिम पाठ के सम्मान में था जो उन्होंने रविवार वाले कपड़े पहन रखे थे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मैं समझ गया था कि वो बुज़ुर्ग लोग कमरे में पीछे की ओर क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too. वो इसलिए है कि वो भी दुखी हैं। That they had not gone to school more, कि वो अब ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. तो ये उनका तरीका था अपने अध्यापक के 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का, जो अब उनके साथ उस देश में और अधिक नहीं रहेंगे। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. मैंने अपना नाम पुकारा जाने को सुना, मतलब मैंने सुना कोई मेरा नाम पुकार रहा है। It was my turn to recite. अब मेरे बोलने की बारी थी। Recite means repeat aloud. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से स्पष्ट सुनने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंची आवाज़ में और स्पष्ट आवाज़ में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। सो हमारा फ्रांस कह रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार था कि मैं अब बहुत ही स्पष्ट रूप से ग्रामर के रूल्स को बिना किसी गलती के सुनूंगा और ध्यान दूंगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैंने शब्दों में अपने आप को उलझा लिया, लेकिन मैंने सारे शब्दों को मिक्स कर दिया और मेज पकड़कर ही खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन पार्ट 1. So do not forget to like, comment, share and subscribe my channel Learn English with Komal. So bye students.